ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਣਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਲੈਂਟ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਲੀਡਰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਾਲਤ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਨਫੀ ਹੈਗਾ। ਮਨਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट। आज आप राजपुरा में आए हैं, तो क्या कहना है राजपुरा? आज मैं राजपुरा में पहुंचा हूं, यहाँ की कोर्ट्स में। तो यहाँ के हमारे एडवोकेट्स ने पुरजोश हमारा इस्तकबाल किया है, तो इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ मेरे पहुँचने पर मुझे वेलकम कहा और मुझे इतनी मेरी इज़्ज़त अफजाई की। राजपुरा शहर प्यार देने वाले लोगों का शहर है, और मेरी काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि मैं राजपुरा जाऊं और वहाँ के हमारे जो वकील साहबान हैं और हमारे और पार्टी के दूसरे जो अहदेदार साहबान हैं उनसे मिलूं, उनसे विचार बटंदरा करूं। तो ऊपर वाले की कृपा से आज मुझे ये मौका मिला, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पहुंचकर मुझे मौका दिया कि मैं उनके सामने अपनी बात
रख सकूँ। एमएलए साहब, देखो आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी मलेरकोटला से कोई जीता है, चाहे मोहम्मद यार आलम हो, रजिया सुल्ताना हो, मंत्री बने हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि अभी तक आपको कोई माइनॉरिटी से कोई मंत्री पद नहीं दिया गया? ऐसा असल में ये मुख्यमंत्री साहब की प्रेरोगेटिव होती है और हमारे पास 92 एमएलएज़ का मैंडेट है और उसमें बहुत से ऐसे हमारे एमएलएज़ हैं जो बहुत तजर्बा रखते हैं और बहुत काबिल हैं। तो पार्टी हाईकमान ने बहुत सोच समझकर कैबिनेट जो है वो बनाई है और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे बड़ा प्यार सत्कार दिया है और पार्टी की तरफ से मुझे हमेशा मान सत्कार मिलता रहा है और मिल रहा है और हम एक टीम की तरह से सभी लोग पंजाब को एक हरा भरा पंजाब बनाने के लिए, हंसता खेलता पंजाब बनाने के लिए और पढ़ता और सेहतमंद पंजाब बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो जिम्मेदारियां होती हैं मंत्री पद की या एमएलए की, इसको हम लोग सेवा के तौर पर लेते हैं और एक जिम्मेदारी समझकर अदा करते हैं। हम इसको कोई ओहदा नहीं समझते क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए वो पंजाब जिसको पिछली सरकारों ने, दूसरी पार्टियों ने तबाह बर्बाद कर दिया, उस पंजाब को फिर से सही मानों में पंजाब बनाने के लिए मिलजुल कर जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत मान साहब की रहनुमाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है। इलेक्शन के टाइम जो पंजाब की जनता से वादे किए गए थे, जो गारंटीज़ दी गई थी, आप सब जानते हैं कि सौं उठाने के बाद पहले दिन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब उन गारंटीज़ को, उन वादों को पूरा करने के लिए पूरे दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया, गारंटी दी गई और वो 1 जुलाई से उसको लागू किया गया। मोहल्ला क्लिनिकों की बात हुई, आप देख रहे हैं कि कल 75 मोहल्ला क्लिनिक जो हैं उनका उद्घाटन करके लोगों की सेवा के लिए खोल दिए गए हैं और अब हर 2-4 दिनों के बाद 5, 7, 10 मोहल्ला क्लिनिक जो हैं उनका इफ्तिताह, उनकी शुरुआत, उनका उद्घाटन होता रहेगा और इस तरह से ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। करप्शन थी, पूरे समाज को करप्शन ने घेरा हुआ था, रिश्वतखोरी थी, किसी भी महकमे में बग़ैर पैसे से काम नहीं होता था। उसको कंट्रोल करने के लिए भी पहले दिन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी प्लान्ड वे से मुहिम चलाई है और नशों का दरिया जो बहता था, नशों के सौदागर जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रहे थे, उन नशों के दरिया को रोकने के लिए, उन नशों के सौदागरों को गिरफ्त में लाने के लिए बड़ी मंसूबाबंद तरीके से मुहिम चल रही है और पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री साहब की आदेश के मुताबिक मैं समझता हूँ बड़ी हद तक नशों के कारोबार में कमी आई है और आने वाले दिनों में जो पंजाब के जनता से, पंजाब के लोगों से वादा किया गया था नशों के ख़ात्मे का, हम इसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे।
आम आदमी पार्टी से महिलाएं नाराज हैं। वो कहते हैं इन्होंने वादा किया था कि आते ही हमारी सरकार बनते 1,000 रुपये शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर भी बात ही नहीं होती। एक्चुअली ऐसा है कि जब सरकार रही अकाली भाजपा की, जब भी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, उन पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने पंजाब के लोगों के साथ जो वादे किए थे और उनको वो कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 4.5 साल तक उन पे अमल करना शुरू नहीं करते थे। और जब इलेक्शन में 4 महीने 6 महीने रह जाते थे तो फिर वो उस एजेंडे को उठाते थे और थोड़ा बहुत इधर उधर करके लोगों को बहका कर फिर उनकी वोटें बटोर लिया करते थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री मानयोग भगवंत मान साहब ने सौं उठाने के बाद पहले दिन से ही उस एजेंडे पर काम करना शुरू किया था जो एजेंडा इलेक्शन के टाइम लोगों के सामने रखा था। जहाँ तक महिलाओं की 1,000 रुपया देने की गारंटी की बात है, तो अभी तो 4-5 महीने हुए हैं सरकार बने को, और कई एक गारंटीज़ और कई एक वादे जो हैं सरकार ने पूरे किए हैं। स्टेप बाय स्टेप पंजाब के लोगों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। और आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से पंजाब तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज़े के नीचे दबा हुआ है। एक तरफ हमारे सामने उस कर्ज़े को उतारने का मसला है, दूसरी तरफ वो तमाम गारंटीज़ को पूरा करने का मसला है जो हमने इलेक्शन से पहले पंजाब के लोगों के सामने रखी थी। मैं समझता हूँ कि इतने थोड़ी सी मुद्दत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत मान साहब ने जो कई एक मुद्दों पर पहलकदमी करके उनको पूरा किया है और उन पर काम किया है और उसके अच्छे नताइज सामने आए हैं और लोग खुश हैं। हमने इसके बाद अच्छे कॉलेजेस देने हैं, अच्छे स्कूल्स बनाने हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स तो शुरू हो गए हैं। तो इन तमाम फील्ड्स में सरकार जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि 5 साल ख़त्म होते होते पंजाब का नक्शा चेंज हो जाएगा। पंजाब में बड़े पैमाने पर आपको तब्दीली देखने को मिलेगी और ये जो वादे किए हैं ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी पूरे करेंगे। ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ 50 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि कई बार कई लोगों को दूसरी पार्टी के लोग भड़काते भी हैं। जब वो देखते हैं कि इतने थोड़े अरसे में इतने काम हो गए और काम बड़ी तेज़ रफ्तारी से हो रहे हैं, लोगों की डिमांड्स पूरी हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कच्चे मुलाजमों से भी वादा किया था कि आप लोगों को पक्का करेंगे, तो वो भी प्रोसेस चल रहे हैं। और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार देने के लिए नौकरियां भी निकाली गई हैं। और अगर हम ये सोचें कि जैसे हम बिजली का बटन दबाते हैं तो स्विच दबाने से सारे पंजाब के मसले एक ही मिनट में, एक ही घंटे में, एक ही दिन में, एक ही महीने में हल हो जाएं, तो ये ठीक नहीं होगा। वक्त लगेगा और वक्त के साथ साथ जितनी और मतलब वादे किए हुए हैं वो सारे पूरे किए जाएंगे। जहाँ तक धरनों का ताल्लुक़ है, कई लोगों की आदत होती है या दूसरी पार्टियां उकसा कर जब वो देखती हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जो है बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो इतने कम अरसे में इतने बड़े बड़े काम करके उसने नामना खाटी है और इसको कैसे बदनाम किया जाए,
तो इस किस्म का काम दूसरी पार्टियां हमेशा करती रहती हैं, और दूसरी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो उन्होंने पिछले 70-75 साल ऐश परस्ती में ही गुजारे हैं। तो हमारे पास एजेंडा है, हम मेहनत से, लगन से पूरे पंजाब की खुशहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब की अगुवाई में काम कर रहे हैं और जनता के रहमान साहब, एक बात और, जैसे कि आपने अभी बताया कि पंजाब ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, उसके बाद 1000 रुपया हर एक महिला को देना है, बिजली मुफ्त देनी है। क्या इसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि जनता पे कोई नया टैक्स थोप के ये सारा हम जो सिस्टम है वो उसको करेंगे? नहीं, ऐसा तो ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि अभी 30 जून को जो बजट पास हुआ है, उस बजट में किसी किस्म का भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। पंजाब जो रिश्वतखोरी के जाल में जकड़ा हुआ था, पंजाब में जो माइनिंग और शराब और ये माफिया लोग राज कर रहे थे, ग्रुप काम कर रहे थे, चाहे वो केबल माफिया की बात हो, ट्रांसपोर्ट माफिया की बात हो, या लैंड माफिया की बात हो, या सैंड माफिया की बात हो, इन सब पे काबू डाला गया है और हज़ारों करोड़ रुपया सरकार की इनकम में इजाफा हुआ है और होगा, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, जिससे हम लोक भलाई की जो स्कीमें हैं, एजुकेशन की है, सेहत सहूलतें देने की है, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस देने की है, वो तमाम पूरी करेंगे। और जैसे आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मेडिकल कॉलेजेस बनाने का ऐलान किया है, और मलेरकोटला में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। अभी मस्तुआना साहब में उन्होंने संगे बुनियाद रखा है पिछले हफ्ते। तो इस तरह से 16 मेडिकल कॉलेजेस और नए बनेंगे, जिससे मेडिकल शिक्षा के मैदान में हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत सी सहूलतें मिलेंगी, और वो ये इसका प्रसार होगा और बड़े पैमाने पर मेडिकल की शिक्षा जो है वो फैलेगी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, किशन सिंह जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, स्टेज पे जब खड़ते हैं तो पूरी लहर ला देंगे हैं, ये बेचारे घर बैठे रहते हैं, कि इन्हों का फायदा उठाना चाहिए था पार्टी ने। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ के जो हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे मतलब अभी बेनती करूँगा कि इनकी जो सेवाएं हैं, इनकी खिदमत हैं, इनका तजर्बा है, तो इनमें काम करने की जो सलाहियत है, उस सब से फ़ायदा उठाकर इनको मतलब अभी इनके से सीख हासिल करनी चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। जी, मेहरबानी।